Hello, dear students. The topic for today's lecture is railway gauge. So, first of all, let us understand what are railway gauges. Gauge is defined as the minimum perpendicular distance between the inner faces of two rails. As you can see in the figure also, जो आपका रेल सेक्शन है उसके दो फेस हैं, एक इनर फेस एक आउटर फेस. ये जो इनर फेसेस होते हैं उसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम गेज कहते हैं. Inner faces are also called as running faces. Thus, gauge may also be defined as the distance between the running faces of two rail sections. Now, let us understand the different type of gauges used in Indian Railways. So, generally, four types of gauges are used in Indian Railways. The first one is broad gauge. It is the widest gauge with the width equals to 1676 millimeter. Then comes the standard gauge, in which the gauge distance is 1435 millimeter. Then comes the meter gauge, in which the gauge distance is 1000 millimeter. And the last one is the narrow gauge. It is the narrowest gauge, in which there are two types of width, which are as follows: 762 millimeter and 610 millimeter. Now you can see the different type of gauges in this figure also. The top one, that is the narrowest gauge of 610 millimeter width, and the last one, which is the widest gauge, also called as broad gauge, on which the width between the running faces of the rails is 1676 millimeter. So this is basically the gauge distance. Now let us discuss these type of gauges in detail. The first one is broad gauge. As I earlier also told you, it is the widest gauge, in which the distance between the running faces of rail section is 1676 millimeter. In India, the first railway line built with the broad gauge was from Porbandar, which is now called as Chhatrapati Shivaji Terminus, to Thane in 1853. These type of gauges are generally used at places where there is a probability of heavy traffic with a high speed, as they give a better stability to the railway track as compared to the other type of gauges. Broad gauge are also used on ports for carrying out cranes etc. सो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे रेलवे ट्रैक है जिसमें कि प्रोबेबिलिटी है कि बहुत हैवी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आएगा, मतलब बहुत सारी ट्रेन्स आएंगी और जाएंगी एंड दे विल कम विद अ हाई स्पीड, तो वहाँ पे हमें क्या रिक्वायर्ड होगा कि जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो स्टेबल हो, सो दैट नो मिस हैपनिंग ऑकर्स ड्यू टू दिस हैवी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. So that is why as broad gauge gives the highest stability among all the type of other gauges, तो इन places पे हम generally broad gauge को use करते हैं. Now the standard length of rail for broad gauge is 13 meter. As earlier in the lecture I told you that जो हमारा railway track है वो हम construct करते हैं different rail sections को join करके using fish plates and bolts. So in case अगर हम broad gauge system में अपना railway track build कर रहे हैं तो उस केस में जो एक rail section होगा उसकी standard length होती है 13 meter. This is an important factor. You need to learn this factor. The next one is standard gauge. In standard gauge, the distance between the running faces is 1435 millimeter. This type of gauge is generally used in urban rail transit system like metros. The reason behind this is that in these type of gauges, it is easy to get rolling stock as compared to the other gauges. Rolling stock generally आपके रेलवे के vehicles होते हैं and इन स्टैंडर्ड गेज के केस में हमें रेलवे व्हीकल्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं. सो दैट इज़ वाई मेट्रो सिस्टम्स में हमारा स्टैंडर्ड गेज यूज़ होता है. ये जो भी मेट्रो सिस्टम है दे आर ऑपरेटेड सेपरेटली फ्रॉम द इंडियन रेलवेज. द नेक्स्ट वन इज़ मीटर गेज. इन दिस द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस इज इक्वल्स टू 1000 millimeter. दे वर जनरली इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द कॉस्ट. बेसिकली व्हाट हैपन कि जो भी आपके ब्रॉड गेज थे वो क्योंकि वाइडेस्ट होते हैं, सो इन दैट केस उनकी जो कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. एंड एट दोज प्लेसेस वेयर देर इज़ नॉट मच ट्रैफिक दे प्रूव टू बी क्वाइट अनइकोनॉमिकल. सो इन तरह की जगहों पे जहाँ पे कि हमारा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है रेलवे का, वहाँ पे वी कैन यूज़ मीटर गेज सो दैट दे कैन प्रूव टू बी इकोनॉमिकल. इन केस ऑफ मीटर गेज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल सेक्शन इज़ 12 meter. The last one is the narrow gauge. It is also called a small line because obviously the distance between the running faces is minimum in these type of gauges, which is 762 millimeter and 610 millimeter. Narrow gauge railways usually cost less to build because they are usually lighter in construction. क्योंकि नैरो गेज के केस में जो भी आपकी विड्थ है गेज की वो मिनिमम है, तो दैट इज़ वाई यूजुअली इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है. Narrow gauge is often used in mountainous terrain where the savings in civil engineer work can be substantial. जनरली क्या होता है जो भी ब्रॉड गेज होता है उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि जिस भी जगह पे वो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं वहाँ पे ग्रेडियंट्स हो फ्लैटर एंड जो स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा हो.
एंड एज़ यू ऑल नो दैट जो माउंटेनियस टेरेन होता है वहाँ पे हमारा जो ग्रेडियंट होता है वो भी बहुत स्टीप टेरेन होता है, एंड ऑल्सो स्पेस का भी हमारा कंस्ट्रेंट रहता है माउंटेनियस रीजन पे. सो इन दीज टाइप ऑफ रीजन्स जनरली नैरो गेज यूज़ होते हैं बिकॉज दे कैन बी बिल्ट ऑन स्टीप टेरेन्स ऑल्सो, अनलाइक ब्रॉड गेज विच रिक्वायर्स फ्लैटर टेरेन्स. नैरो गेज को हम स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ में भी यूज़ करते हैं जहाँ पे कि रेलवे सर्विसेज की जो डिमांड है वो बहुत कम है, एंड ऑल्सो दे आर यूज फॉर टेम्प्रेरी रेलवेज. टेम्प्रेरी रेलवेज मीन्स उस टाइप की रेलवे जो कि अपने यूज़ के बाद हम उसको रिमूव कर देते हैं, जैसे कि आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो गई या फिर लॉगिंग इंडस्ट्री हो गई. लॉगिंग इंडस्ट्रीज़ मतलब जब हम किसी एक एरिया से लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज़ को कट करके दूसरे एरिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं लॉगिंग इंडस्ट्री. तो ये जो इस टाइप की रेलवे सर्विसेज है मतलब पूरे यूज़ होने के बाद हम उसको रिमूव कर सकते हैं. उस केस में हम नैरो गेज को यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड ईजी टू डीकंस्ट्रक्ट. द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल फॉर नैरो गेज इज़ 12 मीटर. नैरो गेज सिस्टम में भी जो रेल सेक्शन की स्टैंडर्ड लेंथ होगी वो होगी हमारी 12 मीटर. सो दीज वर द डिफरेंट 4 टाइप ऑफ गेजेस. Now let us know what are the different factors which affect the choice of a particular type of gauge. मतलब हमें कौन सा गेज कब सेलेक्ट करना है ये कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, which are as follows. The first one is traffic condition. अगर जो भी हमारा एरिया है वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी ट्रेन्स आएंगी और जाएंगी, सो इन दैट केस हम वाइडर गेज सच एज ब्रॉड गेज या स्टैंडर्ड गेज को हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ पुअर एरियाज़. इन केस जो भी हमारा एरिया वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड है, सो वील बिल्ड अ नैरो गेज ओवर देयर सो एज टू डेवलप दैट एरिया एंड ऑल्सो टू लिंक इट टू द आउटसाइड डेवलप्ड वर्ल्ड. द थर्ड वन इज़ कॉस्ट ऑफ ट्रैक. जो भी रेलवे ट्रैक की कॉस्ट होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ गेज. मीन्स जितनी ज़्यादा गेज विड्थ होगी उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ ट्रैक होगी. सो अगर जो फंड अवेलेबल हैं दे आर सफिशिएंट, सो वील बिल्ड अ स्टैंडर्ड गेज और अ ब्रॉड gauge. And if the fund available is not sufficient, so we'll build a meter gauge or a narrow gauge. Means अगर fund available हमारे कम है, so rather than to have no railways at all, we'll build a narrow gauge or meter gauge over there. The next factor is speed of movement. The speed of a train is a function of diameter of wheel, which in turn is limited by the gauge. Generally speed of train जो होती है वो depend करती है wheel के diameter पे, and जो ये wheel का diameter है that depends upon the gauge, which is about 0.75 times the gauge width. This means जो speed of train होगी वो भी almost directly proportional हो जाएगी gauge width के. सो अगर हायर स्पीड्स आर टू बी अटेन तो हम ब्रॉड गेज ट्रैक को यूज़ करेंगे, एंड अगर स्पीड्स जो है वो ज़्यादा हाई नहीं है तो वील प्रेफर मीटर गेज एंड नैरो गेज ट्रैक. द लास्ट फैक्टर इज़ नेचर ऑफ कंट्री. नेचर ऑफ कंट्री मीन्स जो भी प्लेस है उसका टेरेन कैसा है. तो अगर हमारा माउंटेनियस टेरेन है, एज अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू, माउंटेनियस टेरेन में वील प्रेफर नैरो गेज सिंस इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ ईजी टू ले डाउन ऑन स्टीप ग्रेडियंट्स. एंड अगर हमारा जो टेरेन है वो फ्लैटर टेरेन है, सो वी कैन बिल्ड अ ब्रॉड गेज ओवर देयर. So these were the main 5 factors on which the selection of a particular type of gauge depends. This was all about Indian Railway gauges. Hope you all understood the topic. Thank you.